فارمیٹنگ، چینجنگ فونٹ پراپرٹیز۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ورڈ میں مختلف سائز اور مختلف طریقوں سے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ بہت آسان کام ہے۔ ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں۔ جو رائٹنگ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اسے کمپیوٹر کی زبان میں فونٹ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ فونٹ کے سائز اور ٹائپ کو کس طرح بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ ہر بار کوئی نئی فارمیٹنگ اپلائی کرنے سے پہلے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ مختلف طرح کی فارمیٹنگ کی آپشنز اس پر اپلائی کر سکیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہوم ٹیب کے ریبن ایریا میں 12 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ فونٹ سائز ہے۔ اسے بدلنے کے لیے ہم 12 کے ساتھ نظر آنے والے ایرو کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مختلف فونٹ سائزز کی لسٹ آ گئی ہے۔ ہم ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک پر کلک کرتے ہیں۔ مثلاً ہم 16 پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب 12 کی بجائے 16 سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 8 نمبر فونٹ سب سے چھوٹا اور 72 نمبر فونٹ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت اس لائن میں 8 نمبر فونٹ میں ٹیکسٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس لائن میں 72 نمبر فونٹ اور اس لائن میں 12 نمبر فونٹ میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ فونٹ سائز چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے فونٹ کی پراپرٹیز والی اسکرین آ گئی ہے۔ ہم سائز کے نیچے سے 16 فونٹ سائز سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن دباتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب 12 سائز کی بجائے 16 سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوم ٹیب کے ریبن میں آپ کو ٹائمز نیو رومن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ فونٹ ٹائپ ہے۔ فونٹ ٹائپ چینج کرنے کے لیے ہم ٹائمز نیو رومن کے ساتھ والے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مختلف فونٹس کی ایک لسٹ آ گئی ہے۔ ہم اس میں سے کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتے ہیں۔ چلیے آپ کو دکھانے کے لیے ہم ایریل بلیک چوز کر لیتے ہیں۔ چوز کرنے کے لیے ہم لسٹ میں سے اس فونٹ کے نام پر کلک کرتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ہمیں ایریل بلیک سٹائل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فونٹ چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پراپرٹیز والی اسکرین کھل جاتی ہے۔ ہم اس اسکرین میں فونٹ کے نیچے سے ایریل بلیک فونٹ ٹائپ سلیکٹ کر کے اوکے دباتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ایریل بلیک فونٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہی فونٹ ٹائپ ہے جو کہ آپ نے پہلے ریبن بار سے چوز کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہوم ٹیب کے ریبن بار پر دائیں طرف آپ کو نارمل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو ٹیکسٹ کے اسٹائل کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکسٹ پر کون سی فارمیٹنگ یوز ہونی ہے۔ مثلاً کہ ٹیکسٹ ہیڈنگ ہے، ٹیکسٹ اسپیسنگ میں ہے کہ ٹیکسٹ ٹائٹل میں ہے وغیرہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریبن بار میں اسٹائل کے ساتھ پیراگراف اور فونٹ کے ٹول بار بھی موجود ہیں۔ فونٹ کے ٹول بار میں سے ہم ایک آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ چلیے بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ پر ہماری سلیکٹ کی ہوئی فارمیٹنگ اپلائی ہو گئی ہے۔ ہینڈز آن ایکسرسائز۔ اسکرین پر ایک لائن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ٹیکسٹ کا سائز 14 اور فونٹ سٹائل ایریل ہے۔ آپ نے اس ٹیکسٹ کا سائز 20 اور سٹائل ٹائمز نیو رومن کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس ٹیکسٹ کو بتائے ہوئے طریقے سے سلیکٹ کریں۔
अब आप होम टैब में फॉन्ट मेन्यू के अंदर नीचे दाएं जाने Artlist मौजूद IO. छोटे से एरो पर क्लिक करें। जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने है उसमें पहली टैब में फॉन्ट के नीचे दी गई ड्रॉप डाउन लिस्ट से टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करें। इसी डायलॉग बॉक्स में दाएं जानिब ऊपर साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट से Music 20 licensing select करें। reimagined. तो इस तरह आपने दिए गए टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज तब्दील कर दिया है। एम्बोल्डनिंग, अंडरलाइनिंग एंड इटैलिक्स। आपने गौर किया होगा कि जब हमने टेक्स्ट का स्टाइल बदला था तो वो मोटा और टेढ़ा हो गया था और उसके नीचे एक लाइन भी आ गई थी। टेक्स्ट को मोटा करने को टेक्स्ट को बोल्ड करना कहते हैं। टेढ़ा Artlist करने को IO. टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखना कहते हैं। और टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने को अंडरलाइनिंग कहते हैं। ये तीनों फॉर्मेटिंग एक साथ। और अलग-अलग भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये तीनों तरह की फॉर्मेटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हमें Music अपने licensing काम में कोई टेक्स्ट का reimagined. हिस्सा नुमाया या बाकी हिस्सों से अलग दिखाना होता है। आमतौर पर आप रजिस्टर में पेंसिल, मार्कर या हाइलाइटर के साथ ये काम करते हैं, लेकिन वर्ड में आप ये काम आराम से फॉर्मेटिंग्स इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आइए हम ये तीनों फॉर्मेटिंग के तरीके सिखाते हैं। Artlist सबसे पहले IO. हम आपको टेक्स्ट बोल्ड करना सिखाते हैं। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए अगर टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। फिर हम रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं। आप देखें कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ Music टेक्स्ट licensing मोटा यानी reimagined. बोल्ड हो गया है। और अगर टेक्स्ट लिखना है तो फिर हम पहले रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं और जो टेक्स्ट हम अब टाइप करते हैं वो बोल्ड में टाइप होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के एक और तरीके में आप कंट्रोल और बी की कीज को एक साथ दबाएं। टेक्स्ट बोल्ड करने के आखिरी तरीके में अगर Artlist टेक्स्ट IO. लिखा हुआ है तो उसे सेलेक्ट करके हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोबारा फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन खुल जाती है। इसमें फॉन्ट स्टाइल के नीचे से हम बोल्ड पर क्लिक करके ओके दबाते हैं। Music जरा licensing देखिए कि reimagined. कैसे जादू की तरह टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। टेक्स्ट इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इटैलिक के लिए टूल बार में आई, और अंडरलाइन के लिए यू। बाकी के दो तरीके भी एक जैसे हैं। इटैलिक के लिए कंट्रोल और आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल और यू। और अंडरलाइंड Artlist टेक्स्ट के IO. लिए फॉन्ट मेन्यू में यू के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं और लिस्ट में से अपनी पसंद की लाइन चूज कर लेते हैं। इंडेंटेशन। रजिस्टर में पैराग्राफ शुरू करने से पहले आप लाइन में थोड़ी सी स्पेस तो छोड़ते ही हैं। Music इसी licensing तरह आप reimagined. वर्ड में भी स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि पता चल जाए कि नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ये करने के लिए आप टैब की दबाते हैं। टैब की दबाते ही ब्लिंकिंग लाइन आगे चली जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे करने को हम कंप्यूटर की जबान में इंडेंटेशन कहते हैं। लाइंस के दरमियान अपनी जरूरत के मुताबिक हम साइज के गैप्स छोड़ सकते Artlist हैं। IO. इन गैप्स को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लाइन स्पेसिंग लगाने के लिए हम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद रिबन के पैराग्राफ मेन्यू में इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने लाइन स्पेसिंग की लिस्ट खुल गई है। इसमें हम अपनी जरूरत के मुताबिक Music स्पेसिंग सेट licensing कर देते हैं। reimagined. हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। स्क्रीन पर आपके सामने अलहदा लाइनों में 4 अल्फाज दिए गए हैं। इनमें से हर लफ्ज पर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। सबसे पहले लफ्ज के शुरू में कर्सर को लाकर टैब की प्रेस करें और इस लफ्ज से पहले लाइन में थोड़ी सी स्पेस बनाएं। Artlist IO. दूसरी लाइन में मौजूद लफ्ज को बोल्ड करना है।
इस लफ्ज को सिलेक्ट करें और फिर होम टैब में मौजूद फॉन्ट मेन्यू से बी को क्लिक करें। तीसरी लाइन के लफ्ज को इटैलिक करना है। इस लफ्ज को सिलेक्ट करें और फिर होम टैब में मौजूद फॉन्ट मेन्यू से आई Music को क्लिक करें। licensing चौथी reimagined. और आखिरी लाइन के लफ्ज के नीचे लाइन लगानी है। इस लफ्ज को सिलेक्ट करें और फिर होम टैब में मौजूद फॉन्ट मेन्यू से यू को क्लिक करें। इस तरह आपने इंडेंटेशन और लफ्ज को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने की एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली। यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर मोर टेक्स्ट। आखिरी तरीके में हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट Artlist पर IO. राइट क्लिक करके कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करते हैं। और कट करने के लिए कट पर। जब हम कोई टेक्स्ट कॉपी या कट कर लेते हैं तो फिर वो क्लिपबोर्ड में से डॉक्यूमेंट में जाता है। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम उस जगह पर Music जाएंगे licensing जहां पर इसे reimagined. इंसर्ट करना है और फिर हम कंट्रोल और वी की कीज एक साथ दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम होम के टैब से जाकर पेस्ट पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम उस जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से Artlist IO. उस फाइल में आ जाता है। अगर कोई टेक्स्ट मिटाना हो तो उसके लिए हम बैक स्पेस या डिलीट की कीज इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की ब्लिंकिंग लाइन से आगे के टेक्स्ट और बैक स्पेस की ब्लिंकिंग लाइन से पीछे के टेक्स्ट को मिटाने के लिए होता है। Music licensing डेटा सेलेक्ट reimagined. करने के बाद हम बैक स्पेस या डिलीट की कीज दबाकर इसे खत्म कर सकते हैं। चेंजिंग टेक्स्ट कलर्स। आप जब कुछ हाथ से लिख रहे होते हैं तो मुख्तलिफ रंगों या कलर्स में लिखने के लिए आप मुख्तलिफ कलर्स के पेन्स या मार्कर्स या हाइलाइटर्स इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में भी आप मुख्तलिफ कलर्स में टाइप कर सकते हैं। ये करने के लिए आप फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार काम है। Artlist आइए IO. अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे रंग बरसा सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रिबन में फॉन्ट के मेन्यू में एक के साथ वाले एरो बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है। Music इस licensing लिस्ट में reimagined. आपको बहुत से रंग नजर आ रहे हैं। हम इनमें से कोई एक कलर पर क्लिक करके चूज करते हैं। क्लिक करते ही वो कलर टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाता है। अगर हम टेक्स्ट पर क्लिक करें तो हमें हमारा टेक्स्ट हमारे चूज किए हुए कलर में नजर आता है। जब हम कलर वाली लिस्ट खोलते हैं तो हमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ नजर आता है। Artlist ऑटोमेटिक IO. काले रंग को कहते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट ब्लैक हो जाता है। जब हम कोई कलर चूज करते हैं तो फॉन्ट मेन्यू में एक के नीचे वो कलर आ जाता है। ये इसलिए होता है कि अगर हमने किसी और टेक्स्ट पर भी वही कलर Music इस्तेमाल करना हो licensing तो हम reimagined. लिस्ट खोले बगैर सिर्फ ए दबाकर टेक्स्ट पर वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के एक और तरीके में हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके फॉन्ट की ऑप्शंस वाली स्क्रीन में फॉन्ट कलर के नीचे से अपनी मर्जी का कलर चूज कर लेते हैं। अगर हम अपनी मर्जी का कलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मोर कलर्स पर क्लिक करते हैं और कस्टम टैब को दबाकर माउस Artlist की मदद से IO. पॉइंटर को मूव करके कलर्स आपस में मिक्स कर लेते हैं और ओके दबाते हैं। हमारा बनाया हुआ कलर टेक्स्ट पर आ जाता है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। अब आपने दिए गए टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। सबसे पहले Music आप इस licensing टेक्स्ट को reimagined. माउस पॉइंटर की मदद से सिलेक्ट करें। अब होम की टैब में कॉपी के आइकॉन पर क्लिक करें। इस तरह से ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। माउस पॉइंटर की मदद से इस टेक्स्ट की आखिरी लाइन के एंड पर कर्सर को लाएं। अब एंटर प्रेस करके कर्सर को अगली लाइन पर लाएं। कॉपी किए हुए टेक्स्ट को यहाँ लिखने के लिए होम की टैब में पेस्ट के आइकॉन पर क्लिक करें। इस तरह Artlist आपने IO. पहले से मौजूद टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लिया है। अब इस डुप्लीकेट टेक्स्ट का
कलर चेंज करने के लिए शिफ्ट की को दबाए रखते हुए राइट एरो को प्रेस करते रहें ताकि ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद रिबन में Music फॉन्ट के licensing मेन्यू में reimagined. ए के साथ वाले एरो पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस लिस्ट में से रेड कलर को चूज करें। गुड, आप टेक्स्ट को रेड कलर करने में कामयाब हो गए। अलाइनमेंट्स एंड जस्टिफिकेशंस। जब आप रजिस्टर में काम कर रहे होते हैं तो आप पेज के दोनों या एक साइड पर लाइन लगा लेते हैं ताकि काम अच्छा लगे। इसी तरह हम वर्ड में भी अलाइनमेंट करते हैं, यानी ना नजर आने वाली लाइंस लगाते हैं। आप अपने टेक्स्ट पर अलाइनमेंट्स लगाकर चूज कर सकते हैं कि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट पेज के बीच में, लेफ्ट साइड या राइट साइड पर आए। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पूरे पेज पर आए तो फिर आप जस्टिफिकेशन यूज करते हैं। अब हम बारी बारी अलाइनमेंट्स और Music जस्टिफिकेशंस licensing लगाना सीखते हैं। reimagined. अलाइनमेंट्स लगाने के लिए अगर पहले से टेक्स्ट टाइप किया हुआ हो तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं, वरना जहां पर टाइप करना हो वहां पर ब्लिंकिंग लाइन ले आते हैं। फिर हम होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू में लेफ्ट अलाइन, सेंटर या राइट अलाइन के बटन्स पर Artlist.io. क्लिक करते हैं। जब हम वर्ड खोलते हैं तो लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट हुआ होता है। राइट मार्जिन के साथ टाइप करने के लिए राइट अलाइन इस्तेमाल होता है। अगर टेक्स्ट सेंटर में टाइप करना हो तो उसके लिए हम सेंटर के बटन पर क्लिक करते हैं। Music लेफ्ट अलाइन licensing दोबारा इस्तेमाल reimagined. करने के लिए हम लेफ्ट अलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जस्टिफाई के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने से वो पूरे स्क्रीन पर आ जाता है, यानी दोनों मार्जिन्स के साथ सेट होता है। अगर कोई वर्ड पूरा ना आ रहा हो तो वो अगली लाइन में चला जाता है और उस लाइन के लफ्जों के बीच में स्पेस बढ़ Artlist.io. जाती है। हाइपरलिंक्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई वेबसाइट खोल सकें तो इसके लिए हम हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी हाइपरलिंक्स लगाते हैं तो वो नीले रंग में लिखे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर Music देख सकते licensing हैं। reimagined. हाइपरलिंक से वेबसाइट खोलने के लिए हम कंट्रोल की दबाते हुए लेफ्ट क्लिक करते हैं। आइए अब जरा हाइपरलिंक्स लगाना सीख लें। हाइपरलिंक्स लगाने के पहले तरीके में हम टेक्स्ट सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करते हैं। खुले हुए मेन्यू में से हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हाइपरलिंक्स की ऑप्शंस वाली स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले के आगे Artlist.io. हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट में नजर आए, जैसा कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ नजर आ रहा है। एड्रेस के आगे हम इस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जो कि हम खोलना चाहते हैं, जैसा कि हमें वर्चुअल Music यूनिवर्सिटी का licensing एड्रेस लिखा reimagined. हुआ नजर आ रहा है। एड्रेस लिखकर हम ओके पर क्लिक करते हैं और हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में आ जाता है। इस हाइपरलिंक को खोलने के लिए हमें कंट्रोल की को दबाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करना होता है। कंट्रोल की को दबाकर जैसे ही टेक्स्ट पर लाएं तो माउस पॉइंटर एक हाथ की शक्ल में तब्दील हो जाता है। देखें कि जैसे ही हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं Artlist.io. तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाती है। जब आप कोई वेबसाइट या ईमेल एड्रेस वर्ड में टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में तब्दील हो जाता है। पहले से बनाए हुए हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए उस पर Music राइट क्लिक licensing करते हैं reimagined. और एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। यहाँ से हम टेक्स्ट टू डिस्प्ले और एड्रेस वगैरह तब्दील कर सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने एक हाइपरलिंक बनाना है। सबसे पहले दी गई स्क्रीन पर हायर Artlist.io. एजुकेशन कमीशन टाइप करें। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पर माउस से राइट क्लिक करें। इसके बाद दी गई लिस्ट में से हाइपरलिंक पर क्लिक करें। हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट
Music licensing reimagined.